रियली थैंकफुल, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ मोंटू मुझे माफ करने के लिए। जो मैंने आपके वे ऑफ बिजनेस, वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ वर्किंग को क्रिटिसाइज करा, कंप्लेन किया, नेगेटिव एनर्जी दी, मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। अपना अपना देखो, whatever partnership you are in, और देखो, and I really criticize men for example, अभी तो बहुत ठीक हो गया, पहले बहुत ज्यादा था, आज से 15 साल पहले तक। I used to feel all men are so much into physical attraction and physical inclination and more or less at the end आप जितना मर्जी प्लेटोनिक बात कर लो, जितना मर्जी आप स्पिरिचुअल बात कर लो, जितना मर्जी आप इंटेलेक्चुअल बात कर लो, बट कहीं ना कहीं गिरते सब लोग फिजिकल पे वापस आके गिरते हैं। तो I had that kind of an experience and I used to criticize about it कि मतलब it's not like कि men is really there for an intellectual relationship with you, कि आप सिर्फ सच में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बैठ रहे हो या बातें कर रहे हो या स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस के लिए बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, लाइक उनका अल्टीमेट एम कहीं ना कहीं यहीं पे आके रुकता है। तो and that is one thing I used to criticize the men a lot about this thought of mine, and I'm really thankful। मैं पहले कर चुकी हूँ, तभी I'm so much free of this that I'm really thankful to all the men for giving me, for thinking about them so typically that they are so much thinking or inclined towards the physical aspect only। तो I'm really बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ सभी masculine energy से माफी लेने के लिए, मेरी सोच के लिए या मेरी इस समझ के लिए that I used to complain or criticize them about, that the only thing which prominently prevails in their mind is about physical beauty or physical inclination। So thank you for giving me। आप देखो आपने किस चीज के लिए कंप्लेंट किया, who किया, criticize किया, maybe for anything, to think in your life and you created that अंधकार, और वो अंधकार आज आपकी जिंदगी में कहाँ भी हुआ पड़ा है। Because you used to think that, for example, ये वाले केस के अंदर, like for the masculine power for men, maybe you मतलब कि तुम्हें तो बस यही चाहिए। I don't know how many women said it, like maybe the sex or maybe a physical touch or physical, maybe whatever physical that intimacy is, तुम्हें तो बस यही चाहिए, तुम्हें मेरे emotions का क्या, तुम्हारे को मेरे प्यार का क्या, तुम्हारे को मेरे feelings का क्या, तुम्हें बस यही चाहिए। And now when you're saying that, it's a kind of criticizing, it's a kind of complaint, and you're saying it, and you're feeling it, or you may be thinking it। और मेरी इसका जड़ कोई भी हो, आपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हो गए, जो भी लाइफ के बारे में जो भी आपने सोचा समझा है, but this thing in itself is a complaint, and how much it will impact your life with your life partner, with your husband, you have no idea about it। Because that's a different relationship, that's a lifelong commitment, but this complaint or criticizing of you about your ex schoolmates or boyfriends or about any men on the planet, even that person in the bus or in the metro, जहाँ जो बस एक मौका ढूंढते हैं तुम्हारे को बस टच करने का, and how much you are criticizing that trait of men, इन्हें तो बस मौका चाहिए चलते फिरते कहीं से भी, and how much that complaint or that अंधकार will really impact your life। आप लोग गलती तो उसकी थी, वो ऐसे होते हैं, वो सच में होते हैं, I'm not saying क्यों होते नहीं होते, मैं ये कह रही हूँ तुमने क्रिटिसाइज किया है, तुम्हारी जिंदगी में ये अंधकार जरूर तुम्हें इम्पैक्ट करेगा। So you need to work on it। Why are you criticizing other people for their nature or for their traits or their attributes? Who are you? It's their choice। अगर आपकी चॉइस है राजमा चावल खाने की, उनकी चॉइस है मुर्गा खाने की, तुम कौन हो तो क्रिटिसाइज करने वाले? They are the way they are, you are the way you are। And the only thing is how you want to reach your manchaha by forgiving everything that is anchaha and asking for forgiveness, क्योंकि आपने उनको wrong make किया है। It's not like कि जो आप सोचते हो वही सही है, और आप सोचते हो कि टेररिज्म गलत है, तो फिर टेररिज्म नहीं होना चाहिए ना दुनिया में, और टेररिस्ट क्यों बन रहे हो, तो उनके लिए टेररिज्म सही है, उसी तरह से उन लोगों के लिए वो वाला लाइफस्टाइल सही है, वो जो कहते कर रहे हो कि वो सही है, बट आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट बार-बार ना करो, इसके लिए आपको अंधेरे से बाहर आना है by being grateful for the forgiveness they have given you, for you being criticizing about their nature or about their mentality or about their हरकतें, whatever it is। And this can be a very deep exercise for you। आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आपके ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स में, आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में, आपकी पूरी लाइफ के अंदर ये क्रिटिसाइजिंग जो आपने किया, इसकी वजह से कितना ब्लॉकिंग हुआ पड़ा है। कई बार हमारे बॉडी में ब्लॉकिंग हो जाती है, आपकी बॉडी सिस्टम्स में, आपकी बॉडी फंक्शंस में ब्लॉकिंग हो जाती है, जो भी बीमारियां हो जाती हैं, अलग-अलग तरह की ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने किसी चीज को ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे दी है कि वहां पे बिल्कुल ही फ्लो रुक गया। तो क्रिटिसाइजिंग इज वन ऑफ द वेरी रेगुलर प्रैक्टिस, सो मेनी पीपल डू, सो आई एम पुटिंग मोर टाइम ऑन टू इट। जब मैं बातें करूं ना, अपने काम करने समय मेरी बातें सुन लो, ठीक है, पर काम करते चलो अपनी। और देखो किसको क्रिटिसाइज किया, आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज अ लॉट द बॉयज अबाउट इट, मतलब इन माय स्कूल टाइम्स, because obviously they are my school partners, my study partners, है ना, like थोड़ा बहुत भी बात कर लो, हंस खेल लो, थोड़ी बहुत बातें कर लो, लगता है कि गर्लफ्रेंड बन गए हो तुम। And then girlfriend doesn't mean only being a special thing, girlfriend तो यानी they have a right on you, they have a, मतलब जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है कि डेट शेट एंड ऑल एंड घूमना फिरना एंड ऑल, फिर हाथ पकड़ेंगे, पप्पी शप्पी मांगेंगे, फिर बस ये ड्रामा शुरू हो जाएगा उनका। तो मतलब क्या, I used to really feel like कि यार इनको बस यही चाहिए। It's not like कि तुम पढ़ाई लिखाई में कितना कंपैटिबल हो, तुम स्पोर्ट्स में कितना कंपैटिबल हो, तुम कितने कन्वर्सेशंस में कंपैटिबल हो, तुम डांस भी कर रहे हो ना, तुम डांसिंग भी कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि डांस में टच हो गया ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ चांस है अपन का। अरे हम तो सिर्फ डांस कर रहे हैं गुड टाइम के लिए, कि लाइक हैविंग अ गुड एंड जॉयफुल टाइम टुगेदर एज अ ह्यूमन, बट इसमें भी तुम्हारे को लग रहा है कि मतलब ये चांस है, तो मतलब हाउ मच आई यूज्ड टू रियली बी क्रिटिकल एंड क्रिटिसाइजिंग अबाउट इट। आप देखो आपने किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया मैस्कुलिन एनर्जीज को। व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम ओनली गिविंग अ ओपनिंग, ओके, तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी जिंदगी में देखो। इज नथिंग, बिकॉज़ आपने क्रिटिसाइज किया तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए आने वाला है एंगर। आपने जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया उतने उस फील्ड के अंदर नेगेटिव हो, आप उतना एंगर से भरे पड़े हो। मतलब जैसे कि किसी भी वे में, आई डोंट नो, लाइक आपका वाला देखो क्या क्या क्रिटिसाइज किया। कीप राइटिंग बिकॉज़ इट्स योर लाइफ, थिंकिंग एंड राइटिंग। काफी गंद भी निकल सकता है, बिकॉज़ समटाइम्स यू आर रियली क्रिटिकल ऑफ क्रिटिसाइजिंग थिंग्स व्हिच इज अ कांस्टेंट पेन इन योर लाइफ, कांस्टेंट पेन। बट अगर आपने क्रिटिसाइजिंग ज्यादा किया होगा तो आप हंसते होगे अंधेरे में, पर अगर आपने कुछ भी आप होप रखी होगी या पॉजिटिव ट्रेट रखा होगा तो आप हो सकता है रोशनी में आ गए हो।
मुझे नहीं पता ना, लाइक आई रिमेंबर लाइक दिस पर्टिकुलर फेस ऑफ माय एक्सपीरियंस इन माय चाइल्डहुड और इन माय टीनेज रादर, कि बिकॉज़ यू नो दोस टाइम्स वर लाइक दैट कि बॉयज एंड गर्ल्स यू गो टुगेदर एंड लाइक ऑब्वियसली इफ बॉयज आर अराउंड मी तो वो मैस्कुलिन एनर्जी सारी तरफ एंड हाउ मच आई रियली वांटेड टू हैव जोक्स एंड टाइम एंड गुड कन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग एंड जितना भी होता था हाँ, पर एंड में मतलब जैसे हाथ पकड़ लेना या यू नो कोजी होने की कोशिश करना या मतलब कि ऐसे रोमांटिक बातें करनी शुरू कर देना। चाहे ये है टैरो के 78 मैजिकल कार्ड्स। लेकिन टैरो में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इन सभी कार्ड शुरू कर देना, चाहे फोन पे या लव लेटर्स लिखना, ऐसे पैचेस कार्ड्स वगैरह आने शुरू हो जाना एंड हाउ मच आई यूज्ड टू बी इरिटेटेड बाय दैट कि लाइक यार क्या है, या दूसरा किसने बोल भी था कि इसकी क्या मतलब कि जैसे कि एंड व्हेन आई यूज्ड टू बी really strict about it and really used to be so much to the point about it, तो इधर मुझे इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता था। नहीं करती है इनको, बस यही चाहिए and obviously sometimes I used to be really angry about it, sometimes I used to be really criticizing about it. But at the same time, I remember in those times when it was so disappointing, I had a hope कि यार अगर दुनिया में ऐसे लड़के होते हैं ना, अच्छे लड़के भी होते हैं, कोई ऐसा है जो तेरे लिए इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा है जो तेरे लिए ट्रू लव रखेगा, कोई ऐसा है जो तेरे साथ इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली या इमोशनली भी कंपैटिबल होने की कोशिश करेगा, कोई है। So maybe because I was okay कि ठीक है ये उनकी choices हैं, ये अभी ऐसे लोग हैं, इनको क्या criticize करना, ये ऐसे ही हैं सारे के सारे, but there is a hope, there are nice people, there are nice men on this planet. So अगर मैंने होप में बनी रही हूँ उस टाइम के ऊपर या थोड़ा सा भी मैं अपने आप को पॉजिटिविटी में रखी होंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास रास्ता था उस अंधेरे से बाहर आने का। पर जिसने होप छोड़ दिया और वो बिल्कुल क्रिटिसाइज भी करा, डिसअपॉइंटमेंट में भी चला गया, तो वो तो बिल्कुल बेचारा अंधेरे में चला गया। तो दिस इज द ओनली फर्क। तो आप भी अपने क्रिटिसिज्म के लिए बाहर आना है तो कैसे करना है? ओनली थिंग इज लाइक बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फॉरगिवनेस, बिकॉज़ यू वर द वन हु वाज एक्सपेक्टिंग, लाइक आई वाज द वन हु वाज एक्सपेक्टिंग द मैन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू बी कैरेक्टरफुल इन अ सर्टेन वे। ओके, इट वाज नॉट देम, इट वाज माय एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई other things were not behaving in that way, so I was becoming criticizing about it or negative about it, complaining about it in whatever way. So today is the time to forgive them and forgive yourself also. आपकी expectation के लिए, who are you to set their expectation, who are you to set their lifestyle, who are you to set their moods or their behaviors. हम कभी किसी दुकान पे जाते हैं फॉर एग्जांपल और हमें कपड़े पसंद नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, बैठ के वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। How many of you do that? कई लोग करते भी होंगे शायद। आप किसी शोरूम पे गए हो, हम मॉल के अंदर, तो आप अंदर गए, वहां पे जो कपड़े हैं वो आपके टेस्ट के नहीं है, तो आप क्या उसको क्रिटिसाइज करने लग जाओगे, उसको नेगेटिव एनर्जी देने लग जाते हो? नहीं, आप उस दुकान से बाहर निकल जाते हो, किसी और दुकान पे जाते हो, किसी और दुकान पे जाते हो, है ना, कहीं और जाते हो, आप कोशिश करते हो अपने पसंद के कपड़े ढूंढने की। कई बार ऐसा होता है कि आप उस दिन पे सारी दुकानों पे घूम लिए पर आपको पसंद के कपड़े नहीं मिले। आपने एक मॉल देखा, 2 मॉल देखा, फिर आपको पसंद के कपड़े नहीं मिले। बट ऑब्वियसली you are looking for it. Sometimes in relationships also you may find a lot of people those who are not matching to your expectations, be it feminine energy or male energy. But what's the point of criticizing them? What's the point of complaining about them? Because हम उनको अगर क्रिटिसाइज या कंप्लेन कर रहे हैं, हम अपने अंदर ब्लॉकेजेस इकट्ठी कर रहे हैं। And by releasing these complaints, by unblocking these blockages, today we are working in the area of life partner, ठीक है? तो कई बार आपके हस्बैंड के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ ब्लॉकेज इसलिए भी आ रही है, उसके मिलने की ब्लॉकेज है, उसके साथ हेवनली रिलेशनशिप होने के लिए ब्लॉकेज, क्योंकि आपने कोई ना कोई अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को होल्ड ऑन टू किया हुआ है क्रिटिसाइजिंग के एरिया में। तो आज आप सबसे माफी मांगोगे जिसको भी क्रिटिसाइज किया व्हाटएवर वे के अंदर। ओके, एंड बी ग्रेटफुल अबाउट द फॉरगिवनेस यू सीक एंड you got in that area. I hope you understand. Next, anger. And we will keep on doing it अपने लाइफ पार्टनर के। Before that, any question, because I want you to take over for the practice. Sure. Yeah, but पहले एक बार किसी लोगों के क्वेश्चन को पूछ के भी, अगर आपको एक बार कोई क्वेश्चन आया, सरिता जी आप भी देख लो, सरिता जो क्लास में क्वेश्चन, मतलब जस्ट सी दैट अगर किसी क्वेश्चन प्लीज कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि काफी ऊपर चला गया होगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो ना, उसी टाइम पे उसको कॉपी भी कर लिया करो, सो दैट यू कैन अगेन पेस्ट इट व्हेनेवर वी आस्क फॉर इट, सो दैट एक का भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कई लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा। सो वन क्वेश्चन इज, हाँ, क्वेश्चन से पहले क्यों जरूर लिख दिया करो। हमें कैसे पता चलेगा आप कमेंट कर रहे हो या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो क्यों लिख देना, क्यों, फिर आगे लिखो जो भी आपका क्वेश्चन है। हाँ बोले। मैम, मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, तो मेरे बिजनेस में लेबर, मटेरियल, सप्लायर, क्लाइंट्स के लिए बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे सबके लिए लिखना है, उनके नेम बोलकर भी कर सकती हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी आपके मैस्कुलिन कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे आपके फादर हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि उन रिश्तों में आपको रोशनी चाहिए, उन रिश्तों में आपको बहुत स्वर्ग चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको फिर जितने भी मैस्कुलिन टच है, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क्स हैं आपके, जो आपके साथ टच रहते हैं अक्सर, तो आपको सबके साथ अपनी क्लींजिंग रेगुलरली करनी पड़ेगी। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इसका क्या मतलब होता है कि आप जब तक अपने अहंकार को, ईगो को, अपनी नेगेटिविटीज को खत्म नहीं करोगे, जो कि आपका ही पार्ट है, तब तक स्वर्ग में एंटर कैसे करोगे? तो ये तो काफी मेहनत का काम है, करो। Ma'am, people are added in the 7-star group. However, they don't know how to start the practice. So can you guide them? हाँ, तो आपके जितने भी 7 स्टार, पहले तो इतना भैया इस बात पे ग्रुप बनाने में कसम से मतलब वाहिगुरु वाहिगुरु हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि हर कोई क्या, हम इसमें डालता हूं, इसमें डालता हूं, इसमें डालता हूं, एक बंदा लिस्ट में